تو دوستو فائنلی آج 18واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو آپ کے امتحان میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ تو چلیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ رہا آپ کا پہلا سوال آپ کے اسکرین پر۔ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور بتائیے کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا۔ سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ غالب نے کل کتنے قصائد لکھے؟ ٹھیک ہے، غالب نے کل کتنے قصائد لکھے؟ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہیں 60، 62، 64 اور 68۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے غالب نے کل کتنے قصائد لکھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا یعنی 64۔ اگلا سوال ہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ٹھیک ہے، کس شاعر نے کہا تھا؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ آپشنز ہیں غالب، حسرت، فراق اور جوش۔ تو بتائیے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی کس شاعر نے کہا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی حسرت۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے کس کی غزل کا مصرع ہے؟ یہ ہمارا تیسرا سوال ہے۔ آپشنز ہیں میر تقی میر، حالی، حسرت اور جوش۔ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ تو بتائیے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے کس کی غزل کا مصرع ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی میر تقی میر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے کس کی غزل کا مصرع ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں ولی، میر، حسرت اور مجاز۔ تو اس سوال کا بھی رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا یعنی حسرت موہانی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے حسرت کی یہ غزل کس اردو فلم میں لی گئی؟ یہ ہمارا پانچواں سوال ہے دوستو۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آپشنز کیا ہے؟ نکاح، شعلے، دیوان اور بازار۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا یعنی نکاح فلم میں جو ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے یہ لی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے کہ اردو کے پہلے شہید صحافی کا نام بتائیے۔ اردو کے پہلے شہید صحافی کا نام بتائیے۔ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپشنز ہیں محمد حسین آزاد، مولوی محمد باقر، محمد علی جوہر، فانی بدایونی۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے اردو کے پہلے شہید صحافی کا نام کیا تھا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا یعنی مولوی محمد باقر۔ دوستو اس سیشن میں جتنے بھی سوالات ہیں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور آپ کے ایگزام میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، لہٰذا ہر سوالات اور اس کے جوابات کو آپ کو اچھے سے ذہن نشی کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے انشاءاللہ خان انشاء کس نواب کی پابندی سے دیوانے ہو گئے؟ یہ ہمارا ساتواں سوال ہے۔ آپشنز ہیں نواب سعادت یار خان، نواب پیارے خان، نواب جلیل احمد خان، پیارے صاحب رشید۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی نواب سعادت یار خان۔ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا کس نے کہا؟ یہ ہمارا آٹھواں سوال ہے دوستو۔ تو بتائیے ہمارے پاس آپشن ہیں کہ غالب، میر، اقبال، احمد ندیم قاسمی۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے احمد ندیم قاسمی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا اخبار کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا اخبار کسے کہا جاتا ہے؟ ویری امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ آپشنز ہیں جامع جہاں نما،
जामे शीरी, प्याम मशरिक, उर्दू दुनिया। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है पहला, यानी जामे जहां नुमा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की किस मशहूर शायर का मिसरा है। ऑप्शंस क्या हैं? मीर तकी मीर, राम नारायण मौजू, गालिब और हाली। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए। हर सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और ख़ुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इससे जो है आपके प्रैक्टिस अच्छे होते हैं और आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आ सकते हैं और जहन नशी भी हो जाएगा। बताइए इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है दूसरा, यानी राम नारायण मौजू। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि सैयद फजलुल हसन किस शायर का असली नाम था। 4 ऑप्शन है हमारे पास। हसरत मोहानी, इफ़्फ़त मोहानी, फ़ानी बदायूनी और हैरत बदायूनी। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी हसरत मोहानी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 12। रूसी हुकूमत ने फैज़ अहमद फैज़ को कौन सा इनाम दिया। ठीक है, इस सवाल का ऑप्शंस है बुकर प्राइज, लीनन इनाम, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्मश्री। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। बताइए रूसी हुकूमत ने फैज़ अहमद फैज़ को कौन सा इनाम दिया। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है लीनन इनाम, यानी फैज़ अहमद फैज़ जो है लीनन इनाम याफ्ता हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस हैं गालिब, इकबाल, फैज़ और जोश। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास दोस्तों। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 10 तहसंग किसका शेरी मजमुआ है। ये सारे सवालात बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए एक भी सवालात और उसके जवाबात को मिस नहीं करना है। ऑप्शंस क्या हैं? फैज़ अहमद फैज़, मजनू गोरखपुरी, मजाज लखनवी और साहिर लुधियानवी। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। बताइए 10 तहसंग किसका शेरी मजमुआ है। तो इस सवाल का भी राइट आंसर हो जाएगा पहला, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है शाम शहर यारा किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शंस हैं जोश, मजाज, हसरत, फैज़। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि रावलपिंडी साजिश केस में किस मशहूर शायर को जेल में डाला गया था। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस क्या हैं? अली सरदार जाफरी, फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, सज्जाद ज़हीर। बताइए रावलपिंडी साजिश केस में किस मशहूर शायर को जेल में डाला गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लंदन की एक रात नावल किसने लिखा। लंदन की एक रात नावल किसने लिखा। ऑप्शंस हैं सज्जाद ज़हीर, प्रेमचंद, अजीज़ अहमद और कृष्णचंद्र। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी सज्जाद ज़हीर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सैयदुल अहरार किसको कहा जाता है। सैयदुल अहरार किसको कहा जाता है। ऑप्शंस हैं हसरत मोहानी, मजनू गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़ और साहिर लुधियानवी। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। सैयदुल अहरार हसरत मोहानी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि रिसाला तहजीबुल अखलाक। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बार बार एग्जाम में आते हैं। रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था। ठीक है, ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी और जफर अली खां। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी।
साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? ऑप्शन हैं हाली, शिबली, सर सैयद और नज़ीर अहमद। ये भी बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने कायम की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबक फिर पढ़ सदाकत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, किसने कहा था? ठीक है, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस हैं मोमिन, गालिब, इकबाल और फैज। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है तीसरा, यानी इकबाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि नजमुद्दौला दबीरुल मलिक निज़ाम जंग किसके खिताब थे? किसके खिताबात थे? ठीक है, नजमुद्दौला अलग खिताब है, दबीरुल मलिक अलग खिताब है और निज़ाम जंग अलग खिताब है। ये तीनों खिताबात हैं। बताइए ये किसके खिताबात हैं? ऑप्शंस हैं गालिब, मीर, फैज़ और इकबाल। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी गालिब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि गालिब की शादी किस उम्र में हुई? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शंस हैं 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल या 16 साल। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। बताइए गालिब की शादी किस उम्र में हुई? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी गालिब की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो चंद अहम सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।